ma'am. Okay, see here. Yesterday we had seen regarding serializability. Okay, that conflict serializability and view serializability. Okay, so now today we will see blind writes. Blind writes means in some schedules write operations are performed without read operation. Writes of this kind are called as blind writes. Write operations are performed without read operation. Okay, this is called as blind write. And read होता है नहीं directly write होता है. Okay, the proper example of this is that in real life when you will write down the assignment, किसी फ्रेंड का आप असाइनमेंट देख के जब लिखते हो तो दैट इज कॉल्ड एज ब्लाइंड राइट, क्योंकि आप देखते भी नहीं हो कि वो करेक्ट है या रॉन्ग है, बस फ्रेंड की बुक ले ली, फटाफट फटाफट लिख लिया, यानी दैट इज द प्रॉपर एग्जांपल ऑफ ब्लाइंड राइट. यानी आप ये देखते नहीं हो कि क्या उसने लिखा है वो करेक्ट है या रॉन्ग है, कुछ भी नहीं देखते हो, रीड करते ही नहीं हो, बस डायरेक्टली you just copy it, means write it down. Okay, that is the best example of blind write. Okay, so उसको उस लॉजिक से याद रखो कि without reading he is writing the value, that is called as blind write. Okay, so blind write means in some schedules write operations are performed without read operation, and read किए बिना ही वो write कर लेता है, that is called as blind writes. Okay, now we will see the examples of testing serializability. Okay, testing serializability. So means using graph we can find out whether the given schedule is serializable or not. Okay, so that we will see. We should make sure that all the schedules generated by the system are serializable. हमको sure करना है कि schedule concurrent है फिर भी वो serializable चाहिए. Serializable चाहिए means it should be correct, and it should be correct means it should work like a serial schedule. दिखने में concurrent है but it should work like a serial schedule, then it is called as serializable, so that we will get the correct answer. Okay, so precedence graph is introduced which will determine the conflict serial. So ये आपको याद रखना है MCQ के लिए, conflict serializability या testing for serializability के लिए precedence graph use किया जाता है. ओके, क्योंकि आगे जाके हमको एक ये भी है, क्या बोलते हैं उसको, वेट फॉर ग्राफ है. ओके, तो वो डेडलॉक के लिए यूज होता है, डेडलॉक के लिए, और ग्राफ का नाम है वेट फॉर ग्राफ, WAIT. ओके, हु इज वेटिंग फॉर होम. इसके लिए दो टाइप्स के ग्राफ है, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट प्रेसिडेंस ग्राफ is used for is related with the serializability. It may be conflict serializability or serializability. Okay, so that you have to remember. Actually यहाँ पे but अभी okay, now see here, for a given schedule S construct a directed graph. Directed graph means arrow should be there. Okay, directed graph from the schedule S, ये भी आपको याद रखना है कि it is directed from the schedule S. This graph is consist of a pair G equal to VE, where V is the set of vertices and E is the set of edges. Vertices means your transaction names T1, T2, T3. Okay, that is called as vertices, and E is the set of edges. Edges means the line that we will draw. Okay, the set of vertices consist of all the transactions in the schedule. That just I have told you. Okay, edges means vertices means transactions. The set of edges consists of all the edges Ti to Tj for which the following three conditions hold up. Transactions के नाम तो हम लिख लेंगे. Okay, T1, T2, T3. But Ti to Tj arrow कैसे जाएगा, कब जाएगा, कब हमको निकालना है. Okay, so see here, these are the three conditions are given. इसमें से कोई भी एक condition आप वहाँ पे apply करनी है आपको. Okay, Ti execute write x before Tj executes read x. अगर Ti पहले राइट करता है बाद में Tj रीड करता है तो एरो जाएगा Ti to Tj, लाइक दिस एरो मींस पहले राइट हुआ बाद में रीड हुआ तो भी चलेगा, बट डेटा आइटम शुड बी सेम हियर. ओके, देन सेकंड कंडीशन, इफ Ti execute read x before Tj executes write x, मींस पहले read x हुआ बाद में write x हुआ तो भी एरो जाएगा. एरो कहां से जाएगा, Ti to Tj, क्योंकि पहले रीड हुआ बाद में राइट हुआ. जैसे यहाँ पे सीक्वेंस का कोई मीनिंग नहीं है, जो राइट और राइट के बाद ही रीड आना चाहिए वो जो हमारा था ऊपर टॉपिक्स में वो यहाँ पे नहीं है हमको, क्योंकि यहाँ पे वी हैव टू ड्रॉ द एरो हियर, एज हियर. ओके, एंड थर्ड वन इज राइट एक्स. अगर Ti executes राइट एक्स बिफोर Tj executes राइट एक्स, अगर Ti पहले राइट एक्स एग्जीक्यूट करता है बाद में Tj
अगर एग्जीक्यूट करता है राइट एक्स तो टी टू टीजे जाएगा एरो। ओके, मींस जो पहले एग्जीक्यूट होता है और जो बाद में एग्जीक्यूट होता है वो पहले से लेके दूसरे तक एरो जाएगा। वी विल सी एग्जांपल। जस्ट आपको इसमें क्या है, रेडेक्स नहीं है, ये याद रखो। रेडेक्स इज नॉट देयर, इतना याद रखो। बाकी क्या है, राइट एक्स राइट एक्स मींस अगर पहले राइट एक्स होता है बाद में रेडेक्स होता है तो राइट एक्स से लेके मींस टी टू टीजे, जिसने पहले राइट किया वहां से लेके रीड तक जाएगा उस एरो तक। रेडेक्स राइट एक्स मींस टी ने अगर पहले रीड किया बाद में टीजे ने उसको राइट किया तो टी टू टीजे वो भी चलेगा। मींस पहले रीड हुआ बाद में राइट हुआ तो भी चलेगा। जिसने पहले रीड किया वहां से लेके बाद में जिसने राइट किया उस ट्रांजैक्शन तक जाएगा। एंड टी आई एग्जीक्यूट्स राइट एक्स बिफोर टीजे एग्जीक्यूट राइट एक्स। टी आई ने अगर पहले एग्जीक्यूट किया राइट एक्स और उसके बाद टीजे ने किया तो टी आई से टीजे जाएगा। ओके, सो वी विल सी एग्जांपल। If the precedence graph of the schedule S has cycle, then the schedule is not conflict serializable. ये याद रखो, ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। If the precedence graph for schedule is cycle, means here it is positive, means here it is negative. Okay, ऐसे ध्यान रखो। If it is cycle, means not conflict serializable. No cycle, means it is conflict serializable. Okay, so this is the precedence graph for schedule 4. शेड्यूल 4 अगर आपको ऊपर का याद होगा सो आई विल शो यू। अब यहाँ पे ध्यान में रखो, आप T1 चाहिए था, यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा? T1 और T2 चाहिए यहाँ पे। ओके, इसमें भी नहीं होगा तो आप ध्यान में रखो T1 T2। अब okay, we will see this is the graph for the schedule 4. Okay, so I will show you the schedule 4. देखो अब यहाँ पे शेड्यूल 4 तो बहुत ऊपर। हाँ, शेड्यूल 4 सी हियर, शेड्यूल 4 वहां पे T1 से T2 है और T2 से T1 है। ओके, सो सी हियर इट इज रीड ए नहीं चलेगा। ओके, सो दिस इज रीड ए and this is right A. So we can draw the arrow or edge from T1 to T2. Arrow is from T1 to T2. Okay, because read A, right A. Okay, अब T1 to T2 तो हो गया। अब चाहे तो यहाँ पे भी हो सकता है आपका रीड बी राइट बी, ये भी हो सकता है, या ये राइट बी भी हो सकता है। दिस इज ऑल्सो कंडीशन गिवन, बट ऑलरेडी हमारा T1 to T2 निकल गया है, अभी हमको वो नहीं देखना है। Now we have to find out whether can we draw the arrow from T2 to T1। ऐसी कोई कंडीशन है क्या कि यहाँ पे हम T2 to T1 एरो निकाल सकते हैं? सो ये भी आ सकती है ना, रीड ए राइट ए, गेटिंग रीड ए राइट ए, ये भी आ सकती है। स्टार्टिंग से ऊपर से स्टार्ट करने का, रीड ए राइट ए। यस, वी कैन ड्रॉ द एरो फ्रॉम T2 to T1। सो इन द ग्राफ वी हैड सीन दैट देयर इज अ एरो फ्रॉम T1 to T2 बिकॉज दिस इज फॉर डेटा आइटम कुछ भी हो, डेटा आइटम कुछ भी हो, हमको सिर्फ कुछ भी हो मीन्स while drawing the age we have to data item should be same। बट अभी एक यहाँ पे एक देखा तो यहाँ पे आप B को भी देख सकते हो या A को भी फिर से देख सकते हो। ओके, that is not the problem। So first arrow we had drawn for the read A and write A। Okay, and second arrow we had drawn from T2 to T1 for read A and write A। Okay, एक बार T1 to T2 arrow निकल गया तो T1 to T2 फिर से ढूंढने की जरूरत नहीं है। ओके, सो नाउ if there is a cycle is shown, okay, cycle is shown in the example। So cycle is shown means what? If it is a cycle means it is क्या आना चाहिए? Not conflict serializable। Cycle means not conflict serializable। तो here it is a cycle, साइकिल हो गई ना ये, ऐसी देखी जाए तो एक ही डायरेक्शन में एरो जा रहे हैं, ऐसे एक ही मींस लाइक दिस। So here for schedule 4 it is a cycle, and it is a cycle means it is not conflict serializable, and we had seen it that schedule 4 is not conflict serializable। Not conflict serializable means, not conflict serializable means after swapping the instructions, using those rules देखे हमने जो कल, using those rules if we are not getting serial schedule, we are after swapping the
instructions we are not getting the serial schedule, means it is called as not conflict serializable. Getting? So हमको फोर्थ वाला शेड्यूल पता ही है कि वो serializable नहीं है क्योंकि हमको उसका आंसर रॉन्ग मिला था. Okay, so the answer is correct. Okay, now we will see the next example so you can understand properly. See here. See here, the precedence graph consists of h t1 to t2 as t1 executes read A before the t2 executes write A. जो मैंने ऊपर बताया आपको. It also contains the h t2 to t1 because t2 executes read B before t1 executes write B. That we had seen. So as there is a cycle, schedule 4 is not conflict serializable. Okay, now we will see another example. See here. Example of precedence graph. Using precedence graph, find whether the given schedule is conflict serializable or not. Okay, now see here. T1, T2, T3. T1, T2 means T11, T12, T13. 3 are given. And I have already told you, if there are three transactions, what we have to do? We have to check it for T11 to T12 first. For T11 and T12. Then T12 and T13. And then T11 and T13. मीन्स दोनों के बीच में सीक्वेंस कुछ नहीं है, बट इन दोनों के बीच में आपको चेक करना है, उसके बाद इस दोनों के लिए आपको चेक करना है, उसके बाद फर्स्ट एंड थर्ड के लिए आपको चेक करना है. ओके, सो सी हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे. ओके, दिस इंस्ट्रक्शंस आर गिवन. हमको क्या करना है इसमें, रीड ए राइट ए ऐसे ढूंढना है. ओके, तो इसमें हम पहले देखते हैं कि कैन वी ड्रॉ द एज फ्रॉम T11 टू T12. सो रीड ए है. अब यहाँ पे राइट है क्या ढूंढे, रीड ए तो नहीं चलेगा. ओके, रीड ए नहीं चलता है, सो राइट ए है यहाँ पे. ओके, सो मैंने बोल्ड किया है, देखो रीड ए राइट ए मींस वी कैन ड्रॉ द एज फ्रॉम T11 टू T12. ओके, एज होगी एक बार 11 टू 12 एज होगी, बाद में आपको उस दोनों के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है अभी. ओके, एज हो गई ना, बस एज निकाल सकते हैं हम दोनों के बीच में, देन इट्स ओके. नाउ वी विल चेक इट आउट फॉर T12 एंड T13. T12 के लिए देखो रीड बी है, तो अब इधर या तो आपको राइट बी चाहिए है क्या, राइट बी, यस, फिर इट इज राइट बी. ओके, मींस वी कैन ड्रॉ द एज फ्रॉम T12 टू T13. अगर रीड बी से नहीं होता है तो आप राइट बी ढूंढ सकते हो. समझे, ऐसा कुछ नहीं कि पहले इंस्ट्रक्शन के साथ ढूंढना है आपको. रीड बी के साथ अगर सपोज यहाँ पे इमेजिन करो राइट नहीं था फॉर एग्जांपल, ओके, तो रीड बी के साथ नहीं होता है तो आपको इस राइट के साथ ढूंढना है कि कुछ है क्या. ओके, इधर राइट है और सपोज इधर रीड हो जाता था, सपोज इधर रीड है, इमेजिन करो रीड बी है. ओके, रीड बी है तो रीड बी तो नहीं चलेगा, बट ये राइट बी फिर आप कंसीडर करो, राइट बी और रीड बी तो चलता था ना. इसका मतलब ये नहीं कि आपको पहली इंस्ट्रक्शन देखनी, हम पहले इंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करेंगे, उसके लिए कुछ नहीं मिलता है तो यहाँ पे देखेंगे कुछ है क्या. रीड और राइट के स्टेटमेंट्स देखना है, ये बीच वाला नहीं देखना है आपको. ओके, सो हियर इट इज रीड बी एंड हियर इट इज राइट बी. मींस आपको हियर वी आर गेटिंग द एज फ्रॉम T12 टू T13. मींस एरो हम निकाल सकते हैं. सो T11 टू T12 हो गया, T12 टू T13 वी कैन ड्रॉ द एज. नाउ व्हाट वी हैव टू कंसीडर T11 टू T13. ऐसा नहीं है उसमें सीक्वेंस की 11 टू 13 नहीं चाहिए, 13 टू 11 भी मिल सकता है. ओके, बट दोनों के बीच में आपको ढूंढना है. सो नाउ हियर रीड ए. अब यहाँ पे देखते हैं अगर रीड ए, तो इसमें तो ए है ही नहीं, तो रीड ए से नहीं कर सकते. ओके, ए के साथ कर ही नहीं सकते क्योंकि इसमें ए है ही नहीं. बी है तो देखते हैं अभी इसमें क्या है. अब ए इसमें तो बी नहीं है, सो बी भी नहीं होगा. जो कॉमन रहेगा डेटा आइटम उसी के साथ हो सकता है. कॉमन डेटा आइटम इज विच इज इन द ब्रैकेट, और वो अगर दोनों इसमें ट्रांजैक्शन में तो ही हो सकता है. अब देखते हैं रीड सी से होता है क्या. रीड सी, बट रीड चलता नहीं है ना, दोनों रीड इंस्ट्रक्शंस नहीं चाहिए, सो रीड सी से नहीं हो सकता है. फिर हम राइट के साथ देखते हैं, राइट सी, यहाँ पे राइट सी है. अब इसमें देखते हैं रीड सी कहाँ पे है, यहाँ पे है. तो अब यहाँ पे एरो कहाँ से कहाँ जाएगा, पहले रीड सी एग्जीक्यूट हो रहा है क्योंकि ये ऊपर है और बाद में राइट सी एग्जीक्यूट हो रहा है. मींस वी हैव टू ड्रॉ द एरो फ्रॉम T13 टू T11. गेटिंग, एरो कहां से निकालना है हमको, कहां तक, जो पहले एग्जीक्यूट होती है वहां से लेके जो बाद में एग्जीक्यूट. अब ये बाद में हो रही है ना क्योंकि ये ऊपर है, तो ये T13 पहले हो जाएगी, उसके बाद T11. सो वी हैव टू ड्रॉ द एरो फ्रॉम T13 टू T11. ओके,
सो सी हियर T1, अरे तीनों के तीनों T1 कैसे हो गए? T2 पीडीएफ में क्या आया देखना पड़ेगा. ओके सी हियर T1 T2 T3 these are the vertices. हमारे सॉरी 11 चाहिए यहाँ पे. 11 12 13 जो क्वेश्चन में पूछा है वही चाहिए. यहाँ पे टाइप क्यों नहीं हो रहा है? एक ही ले रहा है वो, इसलिए 2. एक मिनट. मैं T2 ले लेती हूँ एटलीस्ट. ठीक है, तो आपको उतना तो समझ में आए कि ये 11 12 13 होगा. ओके सो सी हियर T11 executes read A before T12 executes write A. पहले 11 का read A execute हुआ, बाद में T12 का write A execute हुआ. So पहले T11 में हुआ, so T1 to T2 means like that arrow will be like this. Then T12 executes read B before T13 executes write B means T12 ने पहले एग्जीक्यूट किया रीड स्टेटमेंट, बाद में T13 ने राइट एग्जीक्यूट किया. सो 12 to 13 जाएगा. ओके एंड थर्ड वन इज T13 एग्जीक्यूट्स रीड C बिफोर T11 एग्जीक्यूट्स राइट C मींस पहले T13 में एग्जीक्यूट हुआ, बाद में T11 में हुआ. ओके सो पहले T13 में हुआ. सो एरो विल बी लाइक दिस. नाउ द डायरेक्शन ऑफ ऑल दीस एरोज आर इन द सेम डायरेक्शन. ऑल द एरोज आर इन द same direction means it is a cycle. Okay, all the arrows are in the same direction, so it is a cycle. Okay, so as it is a cycle, as there is a cycle in graph, given schedule is not conflict serializer. Okay, not conflict serializer means after swapping two consecutive non-conflicting instruction. Of non-conflicting means read write, write read, write write. Okay, we cannot get serial transaction T11 T12 and T13. अब मैं आपको एक बताती हूँ क्रॉस चेक कैसे करना है. ओके हम क्रॉस चेक करके देखेंगे. स्वैपिंग का रूल याद करो यहाँ पे. ओके स्वैपिंग का रूल याद करो. स्वैपिंग का रूल अभी सपोज हम क्या करेंगे कि T11 पहले स्टार्ट हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ये जो इंस्ट्रक्शन है इसको ऊपर लेके जाने का ट्राई करेंगे. ओके रीड और राइट, बाकी पीछे का कुछ नहीं देखना है. तो राइट एक को मैं ऊपर लेके जा सकती हूँ, यस, क्योंकि यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी ऊपर लेके जाऊंगी, इसके साथ उसके बाद इसके साथ स्वैप करूंगी तो भी ये ऊपर चला जाएगा. ओके सॉरी, उसके बाद सी है, सी को भी मैं ए के साथ, डेटा आइटम्स डिफरेंट है तो सी भी ऊपर जाएगा, राइट ए के नीचे नीचे रेड सी भी जाएगा, राइट सी भी जाएगा. ओके क्योंकि डेटा आइटम डिफरेंट है ना, ए ए बी बी, तो ठीक है. T1 हमको मिल गया, सीरियल में आ जाएगा T1, रीड ए राइट ए, रीड सी राइट सी, क्योंकि डेटा आइटम्स डिफरेंट है. अब हम इन दोनों के बीच में देखते हैं. ओके सो ये B है ना, B इधर C. हाँ तो हम इसको ऊपर लेके जा सकते हैं, रीड बी, ये राइट बी को ऊपर लेके जाना, ये भी जाएगा क्योंकि ये रीड सी के साथ है. देन रीड ए भी जाएगा ऊपर. ओके ये राइट ए है, ये राइट ए भी जाएगा ऊपर. बट राइट बी के लिए प्रॉब्लम होगा. ओके ये सीरियल नहीं हो सकता है एक्चुअली. सीरियल नहीं हो सकता ये बिकॉज रीड ए रीड बी, ये बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस है ना, बहुत लॉन्ग है वो, इसके लिए थोड़ा हाँ ये सबसे लास्ट में है ना. रीड बी तो वो क्या है, कौन सा कॉमन है इसमें, राइट बी. एक मिनट, ए सी सी
Okay, we will see next example. See here, as there is a cycle, means it is not conflict serializable. Okay. Second example is using precedence graph, find whether the given schedule is conflict serializable. T14, T15, T16. इसमें क्या है? अरे यार T1 ही है. T4, T5, T6 ऐसे करती हूँ. ओके, T4, T5, T6. See, again हमको बहुत लो to find out कि इसमें क्या हो गया ये. क्या पकड़ मछली. ठीक है, ऐसा है. ओके, सो सी रीड ए. ठीक है, हम रीड ए और इसमें देखते हैं कि कहीं कुछ है क्या. ए के साथ क्या है? रीड ए वी कैन नॉट डू इट. वो नहीं चलता, हमारी कंडीशन में नहीं है. सो रीड ए एंड राइट ए इज देयर. ओके, एंड रीड ए इज एग्जीक्यूटिंग फर्स्ट एंड देन राइट ए इज एग्जीक्यूटिंग फर्स्ट. सो वी हैव टू ड्रॉ द एरो लाइक दिस T4 to T5. ओके, पहले T4 में एग्जीक्यूट हो रहा है, बाद में T5. ओके, सो T4 to T5 arrow will go like this. Then we will check from this second and third one. अब इसमें क्या है? रीड बी के साथ देखते हैं. रीड बी तो नहीं चलेगा. सो रीड बी राइट बी हो रहा है. ओके, means again we can draw the arrow from 5 to 6. Okay, we have to draw the arrow from 5 to 6. Okay, now we have to check it out from first and third. Okay, first and third. और फर्स्ट एंड थर्ड में डेटा आइटम कौन सा कॉमन है? सी और बी है, और इधर ए और सी है. सो सी इज कॉमन. ओके, डेटा आइटम देखना है कौन सा कॉमन है. जो डेटा आइटम कॉमन होगा वही निकलेंगे ना. ओके, सो यहाँ पे रीड सी है और यहाँ पे राइट सी है. दिस हियर T14 इज एग्जीक्यूटिंग फर्स्ट एंड देन T16. ओके, पहले रीड सी हो रहा है, बाद में राइट सी हो रहा है. सो वी हैव टू ड्रॉ द एरो फ्रॉम T14 to T16. Okay, T14 to T16 means arrow. Now can you tell me whether it is a cycle or not? Anyone? साइकिल है वो या नहीं है? गलत आया तो गलत आया, no problem. Just tell me so that your concepts will get clear. साइकिल नहीं है. Yes, please. Hello. हाँ, साइकिल नहीं है मैडम. साइकिल? नो साइकिल. No cycle. Okay. So it is not cycle. Yes, you are right. It is not cycle because यहाँ और यहाँ तक है एक डायरेक्शन में, बट यहाँ पे नहीं है ना. यहाँ पे रॉन्ग डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया. ये और ये एक डायरेक्शन में, ये उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है ना. सो इट इज नो साइकिल. As it is no cycle, means it is conflict serializable. Okay, no cycle means it is conflict serializable. Okay, so in this way you have to solve the example. अभी आगे का जो है मैं आपको ही बोलती हूँ करने के लिए. एक मिनट. Okay, so no, this is very short. Okay, होमवर्क है ये, वेरी शॉर्ट है. अब आपको मुझे यहीं पे बताना है. कौन सी इंस्ट्रक्शंस आपको लेनी है और क्यों लेनी है, और एरो साइकिल आएगी या नहीं आएगी. सोचो थोड़ा. छोटा एग्जांपल है तो अब यहाँ पे समझ में आएगा. मैं बता एक्सप्लेन करती हूँ.
साइकिल आएगी या नहीं आएगी, पहले वो बोलो। गलत हुआ तो गलत, नो प्रॉब्लम, बट ट्राई करो, क्योंकि ऐसे आपको एमसीक्यू में भी कोडिंग देंगे और बोलेंगे कि वेदर देयर इज अ साइकिल और नॉट, और ऐसे कुछ पूछ सकते हैं, डायग्राम देके पूछ सकते हैं, नहीं तो या तो छोटा सा एग्जांपल देके भी पूछ सकते हैं। ओके, I'll take a revision of this complete chapter again, don't worry. Okay, so आपको और अच्छे से समझ में आएगा। whether there is a cycle or not, एग्जाम्पल छोटा सा ही अभी, बड़ा नहीं है ज्यादा। नो साइकिल। नो साइकिल, ओके। बाकी बाकी यश शिंदे, मयूरी चौहान, कैन यू टेल मी? आर यू देयर? ओके, सी हियर, देखो छोटा सा एग्जांपल है। सो वी विल टेक, कैन वी टेक ry? No, we cannot take ry because ry is not given in our condition. So we will consider ry and wy. Okay, so we can draw the arrow from t1 to t2. Okay, we can draw the arrow from t1 to t2. Now we will check, can we draw it from t2 to t1? Okay, so t2 to t1 के लिए तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इधर y है। ओके, तो y तो ऑलरेडी इधर ऊपर ही है, नीचे नहीं है ना कुछ, इस r के नीचे कुछ नहीं है y का। ओके, सो t2 to t1 नहीं निकल पा रही, और x कॉमन नहीं है, x इधर है तो x उधर नहीं है। ओके, सो ओनली y इज कॉमन इन बोथ द ट्रांजैक्शंस। ओके, सो ये रेड y हो रहा है, बाद में ये राइट y हो रहा है। सो ओनली वी कैन ड्रॉ द एरो फ्रॉम t1 to t2, we cannot draw the arrow from t2 to t1, means there is no cycle. Okay, as there is no cycle, therefore given schedule is conflict serializable. Conflict serializable means after swapping the instructions, we can get the serial schedule. Okay, अब ये छोटा सा एग्जांपल है, तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। Now here we will try it. T1 पहले स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, means first instruction of T1 is executed, T2 तो बाद में स्टार्ट हुआ है, so T1 started first, so हम क्या करेंगे, इसको ट्राई करेंगे कि इसको ऊपर लेके जाए। Okay, so for that what we will do, we have to consider only read and write instructions. Okay, so ये हमको ऊपर लेके जाना है, so we will compare it with this one. Okay, so wx wy, can we swap it? Data items are different, remember the rules. If data items are different, we can swap it. If data items are different, we can swap it. Okay, so means, so here can we swap it, wx and wy? Yes, Ganesh. We can swap it because data items are different. Okay, as data items are different, we can swap it. So wx ऊपर चला जाएगा, wy थोड़ा सा नीचे आएगा। Now we have to consider this wx, अब ये ऊपर चला गया, so we have to compare this wx with ry. Again, can we swap it? Yes, because data items are different, x and y. So ये भी ऊपर चला जाएगा और हमको serial schedule मिलेगा ना इसका. We will get the serial schedule.
So our answer is correct. Is conflict serializable means after swapping, if we are getting serial schedule, it is conflict serializable. Okay. So, but we have to follow those swapping rules. Next example also we will see. See here Rx. क्या हम कंसिडर इसमें से अरे Rx नहीं चलता है ना, Rx नहीं चलता है, Rx Wx चलेगा. ओके Rx नहीं चलता है, so Rx Wx. Okay, Rx Wx. So we can draw the each or arrow from T1 to T2. Okay, क्योंकि पहले T1 एग्जीक्यूट कर रहा है, बाद में T2 एग्जीक्यूट हो रहा है Rx और Wx के बारे में. So it's okay. So T1 to T2, T1 to T2 एरो है. अब यहाँ पे ये चलेगा Rx एंड इसको मैं रेड कर देती हूँ. Okay. Here it works Rx and Wx. So this we can draw the arrow from T1 to T2 because of this, and we can draw the arrow from T2 to T1 because of this. क्योंकि ये T1 पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, बाद में T1. Okay. So साइकिल रहेगी ना, T1 to T2, T2 to T1, ऐसे सर्कल हो रहा है. So as there is a cycle, therefore given schedule is not conflict serializable. Not conflict serializable means we are not getting serial schedule. Now we will cross check it. अब देखो ये पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, T1 is starting first. So we will try to move this Wx in the upward direction. Okay. So we have to compare this Wx with this Rx. Now tell me, can we swap it? Data items are same. Can we swap it? Abhijit? No, sir. Huh? Uh, No. Yes. Why? Because data items are same. Data items are same, and one from these two one is right x. दोनों में से एक भी अगर right x होती है तो we cannot swap. Okay. So means we cannot swap. अगर हम swap नहीं कर सकते तो we are not getting serial schedule. Serial schedule नहीं मिलेगा हमको. This our answer is correct. Correct? Okay. Third example. Third example Rx Wx, नीचे भी है ये Rx Ry. Okay. So नीचे का तो कुछ नहीं है. Rx Wx we can take it. So we can draw the arrow from T1 to T2. क्योंकि पहले T1 का एग्जीक्यूट हो रहा है, बाद में T2 का. ओके. तो Rx Wx यहाँ से एरो जाए. ये तो हो गया. अब इधर हम चेक करते हैं T1 में Ry Wx नीचे है बट Ry है, और Ry तो नहीं चलता है, रीड नहीं चलता है. सो वी कैन नॉट ड्रॉ द एरो. और x का तो नीचे कुछ नहीं है, इस x के नीचे कुछ नहीं है. ओके. सो हियर only T1 to T2 arrow we can draw. Okay. So there is no cycle. So no cycle means it is a conflict serializable. Conflict serializable means we will get serial schedule. Okay. So अब Ry को देखो. अब Ry को देखो यहाँ पे, ये दूसरा पेज पे आ गया है. Ry and Rx. Ry and Rx. Can we swap it? Can we swap it? Yes. Why? data item different. Yes, data items are different. Okay.
because data items are different, so we can swap it. तो ये ry ऊपर चला जाएगा, rx नीचे आएगा. Okay, अब हमको क्या करना है, ry and wx we have to, ry and wx हमको swap करना है. तो can we swap it? Yes, again data item is different, so ry अब इधर चला जाएगा, wx नीचे आएगा, ry इधर चला, इसके साथ कंपेयर नहीं करना है. ओके, उसके साथ होता ही है स्वैप, इसके साथ कुछ भी स्वैप होता ही है. अब हमारा ry यहाँ पे आएगा, इस ry के नीचे यहाँ पे ry है हमारा. कैन वी स्वैप ry? Yes. If data items are same, we can swap the read instruction. So read ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आएगा ry. Means हमको we are getting the serial schedule. So our answer is correct that it is a conflict serializable. Okay. And the last example we will see. wx ry rx. तो पहले तो इसके साथ देखते हैं, wx है इधर कुछ ry या wx है क्या देखते हैं. yes, here rx is there, so we can draw the arrow from t1 to t2. okay, we can draw the arrow from t1 to t2. अब इधर के लिए देखते हैं कुछ है क्या x या y के साथ, बट इंस्ट्रक्शंस यहीं पे खत्म हो रही हमारी. so ry तो हमको नहीं चलता है because it is not given in the rule. और rx के नीचे कुछ नहीं है और हम यहाँ से यहाँ एरो निकाल सके. यहाँ से यहाँ ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ से यहाँ ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ से यहाँ निकलने को कुछ भी नहीं है. सो वी कैन ड्रॉ ओनली द एरो फ्रॉम t1 to t2 as we are, as there is arrow only from t1 to t2 means there is no cycle, and as there is no cycle means it is conflict serializable. conflict serializable means इसको ट्राई करो ऊपर लेने का इसके साथ, क्योंकि ये पहले स्टार्ट हुआ है ना t1, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे सीरियल बनाने के लिए. सो कंपेयर ry विद दिस ry. यस, वी कैन स्वैप. सो ry ऊपर चला जाएगा, ये ry नीचे आएगा, मींस वी आर गेटिंग द सीरियल शेड्यूल. मींस आवर आंसर इज करेक्ट. ओके, सो हियर वी हैव एक्चुअली कंप्लीटेड दिस थर्ड चैप्टर. ओके, सो actually I'll take a revision of this chapter, okay, in the next lecture or tomorrow. But before that we will see the MCQ. इस MCQ से आपको थोड़ा आइडिया आएगा कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा सकते हैं. okay, and in the next lecture I will take a revision of this whole chapter. okay, so I'll share the screen with you, another screen. okay, तो आपको MCQ में थोड़ी आइडिया आएगी. So I'll share the another screen with you. Okay. Okay, see here. You have to give me the answer. Which of the following is not a transaction property? Not a transaction property. Transaction की property नहीं है. Integrity, isolation, atomicity, consistency. ACID याद करो. I के लिए कौन सा है? आइसोलेशन है हमारे इसमें, याद रखो. आइसोलेशन अभी तो बहुत फेमस वर्ड है. ओके, सो आइसोलेशन हमारे इसमें है. सो दिस इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांजैक्शन. ओके, नाउ वंस a transaction completes successfully, the changes it has made to the database persist even if they are system failures. This is known as एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी. अब इसको मीनिंग समझ लो कि हमारा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है. द चेंजेस इट हैज मेड टू द डेटाबेस परसिस्ट, यानी डेटाबेस में चेंजेस हुए हैं, परसिस्ट हुए यानी हो गए. इवन इफ देयर आर सिस्टम फेलियर, सिस्टम फेल होने के बाद भी
वो डेटाबेस में है. दिस इज नोन एज ड्यूरेबिलिटी. ड्यूरेबल का मीनिंग क्या है कि सिस्टम क्रैश होने के बाद भी हमको वो मीन्स एक बार हमने सेव किए तो भी तो हमको वो मीन्स परमानेंटली सेव हो जाते हैं. दैट इज कॉल्ड एज ड्यूरेबल. ओके. और इवन सिस्टम फेल होने के बाद भी हमको वो मिलते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी सिस्टम में हमने डेटाबेस में उसको ऑलरेडी स्टोर किया हुआ रहता है. ओके. सो दिस इज कॉल्ड एज ड्यूरेबिलिटी. ड्यूरेबल है कि हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया, उसको डेटाबेस में स्टोर किया, उसके बाद सिस्टम क्रैश होगी, सिस्टम फेल होगी तो भी हमको वो मिलते हैं. दैट इज कॉल्ड एज ड्यूरेबल. ओके. When a transaction executes its final operation, it is said to be in a which state? Final operation हो गया है उसका execution. कौन से स्टेट में रहेंगे हम? Anyone? स्टेट्स याद करो, स्टेट डायग्राम. We will in a partially committed state. कमिट देने के बाद ही committed state में जाते हैं. ओके. हमारे फाइनल ऑपरेशन हो गया है execute, but we are in a partially committed state. Why? Because committed state में कब जाते हैं? When we will give commit command. Okay. A transaction is in a dash state if it executes all its operations successfully and committed. Now it is in the committed state. अब यहाँ पे दिया है स्पेशली कि committed किया है. So committed means it is in the committed state. Okay. Either all instructions are executed or none of the instruction is executed. This is called as isolation, atomicity, consistency, durability. कौन सी प्रॉपर्टी का मीनिंग है वो? या तो पूरा yes, atomicity means या तो पूरा ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगा या तो कुछ भी. ओके. That is the atomicity. A transaction that has not completed successfully. A transaction that has not completed successfully is called as aborted. हमारे इसमें स्टेट कौन सी है? स्टेट डायग्राम में aborted. जो सक्सेसफुली नहीं होता है कंप्लीट वो abort हो जाता है. The sequence of execution in concurrency control is called as the sequence of execution in concurrency control is called as sequence तो नहीं बोलेंगे उसको, order भी नहीं है, schedule. schedule बोलेंगे ना जो sequentially जिस sequence में वो execute होता है, that is called as schedule. Which one of the following is part of the acid properties of transaction? Acid properties कौन सी है इसमें से? Consistency, atomicity, isolation. All of this सारी है ना? सारी की सारी है. So all of this. A serializable schedule gives same result as some. Serializable schedule gives the same result as some सीरियल शेड्यूल. कोई भी सीरियलाइजेबल शेड्यूल का आंसर कैसे रहता है? किसी भी सीरियल शेड्यूल जैसे ही रहता है ना. ओके. ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स से हमारे काफी कांसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं. ओके. सो हियर एवरी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल इज व्यू सीरियलाइजेबल. अब ये मैंने आपको कल जो बताया था वो स्टेटमेंट आपको याद रखना है. ओके. एवरी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल इज व्यू सीरियलाइजेबल. इसमें नीचे आंसर्स भी दिए मैंने आप लोगों के लिए. ओके. So true. conflict serializable जो है वो view serializable रहता ही है क्योंकि है ना वो serializable means it's working like a serial schedule. Okay. So view serializable भी रहेगा. If the database was in the consistent state before a transaction, then after execution of transaction, the database will not be in the consistent state. जो हमने बोला था एग्जांपल कि suppose we are transferring ₹500 from account A to account B. तो इसका कहना क्या है कि
एग्जीक्यूशन के पहले अगर वो कंसिस्टेंट यानी करेक्ट स्टेट में है तो उसके बाद वो कंसिस्टेंट स्टेट में नहीं रहेगा. ओके, फॉल्स रहना चाहिए ना, बिफोर बी और आफ्टर बी इट शुड बी इन द कंसिस्टेंट स्टेट. ओके, आपके अकाउंट में से माइनस हो गए तो आपका माइनस होना चाहिए 500 और उसके अकाउंट में प्लस हो गए तो उसके इसमें प्लस होना चाहिए. तो आपकी प्रीवियस अमाउंट और बाद में की अमाउंट प्रॉपर करेक्ट ही चाहिए ना. ओके, so that's why it is false. दोनों consistent state में चाहिए. Consistent means correct. Each transaction is unaware of the other transaction executing concurrently in the system. Each transaction is unaware means एक transaction को पता नहीं रहता है कि दूसरा transaction क्या कर रहा है. True or false? हमने देखा ना हार्ड डिस्क का वो कैलकुलेशन के करते समय वो याद करना है. अभी T1 को पता रहता है क्या कि T2 क्या कर रहा है या T2 को पता रहता है क्या what T1 is doing? No, उनको सिर्फ हार्ड डिस्क में क्या वैल्यू है उतनी वो पता रहती है. ओके, सो वहां पे वो याद करना है आपको कि जब कैलकुलेशंस हमने देखी थी तब क्या होता है. सो इट इज ट्रू. Each transaction is unaware of the other transaction executing concurrently in the system. True. एक ट्रांजैक्शन को पता नहीं रहता है दूसरा ट्रांजैक्शन क्या कर रहा है. Getting? That is true. Transaction is active when it is executing. Yes. जब वो execute होता है तो वो active state में ही होता है ना. When several transactions are executed concurrently, the corresponding schedule is called as concurrent schedule. Yes. When several transactions are executed concurrently, at a time बहुत सारे transactions execute हो रहे हैं. Concurrently means simultaneous. Then it is called as concurrent schedule. Executed concurrently means some part of A, some part of B, again some part of A transaction, some part of B transaction. So it is also true. A concurrent schedule producing result that are equivalent to serial schedule is known as serializable schedule. A concurrent schedule producing result that are equivalent to serial schedule is called as serializable schedule. Yes, true. कंकरेंट शेड्यूल का आंसर अगर सीरियल शेड्यूल जिसके जैसा सेम आ रहा है देन इट इज कॉल्ड सीरियलाइजेबल शेड्यूल. जो मैंने आपको तब बातें बताई थी ना पढ़ाते समय वो ये सब कंसेप्ट्स है. ओके, ये ऐसे लिखे हुए शायद ही पता नहीं बट ये सारे मैंने आपको ओरली बताए हुए है. इसमें भी नोट्स में भी है. व्हेन द ट्रांजैक्शन कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली इट एंटर्स इन पार्शियली कमिटेड स्टेट. उसका एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली होने के बाद वो पार्शियली में आता है. ट्रू, बिकॉज कमिट देने के बाद वो कमिटेड में जाता है. हाँ, ये एक थोड़ा सा अलग है. फॉर सेट ऑफ n ट्रांजैक्शंस देयर एग्जिस्ट n फैक्टोरियल डिफरेंट वैलिड सीरियल शेड्यूल्स. मींस अगर हमारे शेड्यूल में n ट्रांजैक्शंस है ओके तो 2 फैक्टोरियल. अब आपको फैक्टोरियल पता होगा इन सी लैंग्वेज. 3 का फैक्टोरियल मींस 3 into 2 into 1. 4 का फैक्टोरियल मींस 4 into 3 into 2 into 1. ओके, तो उतने डिफरेंट वैलिड सीरियल शेड्यूल्स आपको मिल सकते हैं. दैट इज ट्रू. ये अच्छे से याद रखो. सपोज देयर आर 2 ट्रांजैक्शंस, सपोज देयर आर 3 ट्रांजैक्शंस, तो 3 into 2 6, 6 into 1 6. सो 6 अलग अलग आपको सीरियल शेड्यूल मिल सकते हैं वैलिड. ओके, that is the meaning. Yes, it is true. That is the formula. Okay, and the last one is if the precedence graph of a schedule is cyclic, cyclic means cycle, then it is not conflict serializable. True or false? अभी देखा हमने. If means if there is a cycle in precedence graph, then it is called as not conflict serializable. इतना तो ये तो बताओ true or false? True or false? True, of course. True objects we had seen. Okay, so these are the answers. Okay, so answers are given also, and I have already uploaded this MCQ also on the Google Classroom. Okay, so so today we will stop here.